पाकिस्तान में, जिसमें से 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जाता। उनके दरवाजे तक पहुंचने की जद्दोजहद में पाकिस्तान में खुदा लिप्टस आपका साथ दे रहा है। ऐसे लोगों तक इल्म का दरवाजा पहुंचाता है, ऐसे लोगों को इल्म का दरवाजे तक लेकर आता है जिनके पास वसाइल
ٹوٹلی بتایا جاتا تھا کہ جی یہ آرٹس ہے, آپ ایف اے کر رہے ہیں تو آرٹس ہے, آپ ایف ایس سی کر رہے ہیں تو سائنس ہے, آپ انجینئرنگ میں چلے گئے, آپ میڈیکل میں چلے گئے تو آپ سائنسز پڑھ رہے ہیں, اور اگر آپ نے بی اے کر لیا, ایم بی اے کر لیا تو یہ آرٹس کا سبجیکٹ ہے. تو آپ یقین کریں کہ جب میں انجینئرنگ سے فارغ ہوا تو میں بڑا اپنے آپ کو ترم کام سمجھتا تھا. تو پھر موقع ملا کہ میں مینجمنٹ سائنس اور مینجمنٹ کے اندر اور بزنس کے اندر تعلیم حاصل کروں. تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ بزنس اور مینجمنٹ سے بڑی, یعنی جو جس کو ہم آرٹس کہتے ہیں, اس سے بڑی سائنس کوئی نہیں ہے کہ لوگوں کو مینج کس طرح کرنا ہے, اداروں کو مینج کس طرح کرنا ہے. اور آج سے کتنی صدی پہلے اگر میں آپ سے شیئر کروں کہ جو گورے ہیں اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, انہوں نے ہینڈ آئی کوآرڈینیشن کے اوپر صرف کہ آپ کو ایک ٹول بنانے میں یا ایک فیکٹری میں فلانی چیز بنانے کے لیے آپ کو کتنی منیمم موومنٹس کرنی چاہیے اپنے ہاتھوں کی اور لائٹ کی کیا تعداد ہونی چاہیے جس سے آپ کی میکسیمم ایفیشنسی نکل سکتی ہے. یہ کتنی صدیوں پہلے وہ اس بات پہ تحقیق کر چکے ہیں. اور ہمارا یہ انڈسٹریل شہر ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کسی بندے کے پاس ہنر آ جاتا ہے تو وہ آگے ٹرانسفر نہیں کرتا کہ اس سے ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ نیچے نہ چلی جائے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو طب ہے, ہمارا جو حکمت تھی, وہ نہ شیئر کرنے کی وجہ سے, اس کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ کرتے کرتے نہ وہ ان لوگوں کے ان فیملیز کے پاس گئی اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو چیز تجربے سے سیکھنی تھی, صرف ایک سبجیکٹ میں ایک دن کے اندر مجھے یہ بتایا گیا جب میں مینجمنٹ کی سائنسز پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ 5 کیٹیگریز کے اندر ہوتے ہیں. اب جب میں بتاؤں گا تو نیچرلی کیٹیگریز آپ کے ذہن میں آنی شروع ہو جائے گی کہ سب سے پہلے بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے, خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کسی جہاز کو دبا ہوتا ہے, کسی جزیرے پہ رکتا ہے تو سب سے پہلے لوگ جا کے وہ ناریل کا وہ توڑتے ہیں اور پانی پیتے ہیں یا کھانے کا ڈھونڈتے ہیں. اس کے بعد کیا کام کرتے ہیں, اس کے بعد شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ گھاس پھوس سے پتوں سے وہ شیلٹر بناتا ہے. اسی طرح زندگی میں بھی آدمی جو ہے جب 2 وقت کی روٹی پوری ہو جاتی ہے تو کرائے کا مکان یا اپنا مکان بنانے کی تقاضا کرتا ہے. اسکول چھوڑنا, لے کے آنا, پیمپروں کے پیسے, 2 وقت 3 وقت کے کھانے کے پیسے, اور وہ زندگی جو ہے ہم کیا کہیں, باپ کیا کالے نمایاں کر کے بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی, پھر مر گئے. تو 3 اسٹیجز میں پورے ہو جاتے ہیں. تو چوتھی اسٹیج جو ہے کہ جو لوگ علم کے تھرو یا اپنے ہنر کے تھرو اس اسٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ سیلف سیٹسفیکشن کی اسٹیج ہوتی ہے, چوتھی اسٹیج, جس میں آپ اچھی گاڑی خریدتے ہیں, ایک سے بڑھ کے ایک چیز خریدتے ہیں. کسی کو کوئی کہتا ہے یار تم الیکشن لڑ سکنا ہے, وہ الیکشن لڑ لینا ہے, کوئی گھر کو اچھا دیکھتا ہے. تو یہ وہ چوتھی اسٹیج ہے کہ جس پہ لوگ پہنچتے ہیں. لیکن علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سب سے اچھی اسٹیج ہے وہ 5ویں اسٹیج ہے, وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن کی اسٹیج, جس میں ڈاکٹر اسد امتیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جس میں احمد اقبال رضاوی صاحب موجود ہیں, جس میں نسیم صادق صاحب موجود ہیں. یہ وہ اسٹیج ہے کہ لوگ اب ان کو اس چیز کی کوئی قدر, کوئی ویلیو نہیں ہوتی کہ میرے پاس گھر کے سسٹم ہے, میرے پاس گاڑی کے سسٹم کی ہے. میں اکثر سوچتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس میرے خیال 2016 ماڈل ہے گاڑی, 14 ماڈل ہے گاڑی کا, اور ان کا بجٹ آپ دیکھیں میرا 30 لاکھ سے اوپر اگر منتھلی اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں لیگوں کے لیے. تو بندہ اس چیز سے اوپر چلا جاتا ہے. اس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. اس میں لوگ ادارے بناتے ہیں, اس میں لوگ کتابیں لکھتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نام صدیوں میں پھر قائم رہتا ہے. لوگ جانتے ہیں, آج ہم ہمارے سے ہمارے پردادا کا نام پوچھے یا ان کے والد کا نام پوچھ لیں, میکسیمم ہم یہ بتا سکیں گے, اس سے پیچھے نہیں بتا سکیں گے. لیکن آج بھی ہمیں پتہ ہے کہ فلانی کتاب کس نے لکھی تھی, فلانی چیز کس نے ایجاد کی تھی, اور فلانا ادارہ کس نے بنایا تھا. تو یہ سب چیزیں تعلیم میں جب میں نے یہ پڑھا تو میری بھی خواہش ہوئی کہ یار جو چیز میں نے شاید 50 سال میں جا کے سیکھنی تھی, مجھے ایک لیکچر میں پتہ چل گیا کہ یہ 3 4 5 اسٹیجز ہیں, مجھے کس اسٹیج کے اوپر جانا ہے. تو بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے, جاب کے لیے صرف ضروری نہیں ہے تعلیم, اس زندگی میں اپنے ٹائم کو بیسٹ یوٹیلائز کرنے کے لیے. اور پھر ایسے ادارے جو اس کاوش کو لے کے آگے چل رہے ہیں, غزالی فاؤنڈیشن پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے. میری ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ قدم ملا کے چلیں, اور اس مشن کو انشاءاللہ پاکستان کی ترقی بھی اسی میں ہے. ہم سب لوگوں کا فلاح بھی اس کے اندر ہے کہ جتنا اچھا معاشرہ ہم بنائیں گے ہمارے بچوں کا مستقبل اتنا محفوظ ہوگا. ابھی تک جو انہوں نے جانا ہے وہ کیا آپ کے لوگوں کلیپنگ میں ڈاکٹر حسن امتیاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر. اس شعوری مخلوق کے وجود کی 2 لائنز میں جو ہے وہ وجہ بیان کی ہے, جسے کہتے ہیں دا وائی کوسچن, کہ آخر ہمارا اور اس معاملے کائنات کا وجود ہی کیوں ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ وہ تمہیں سمجھائے کہ تم میں سے ایسا کرنا کون کرتا ہے. تو بس ثابت ہوا کہ ہماری ایگزسٹنس کا, ہمارے ایگزسٹنشل کوسچن کا جواب ہے آزمائش. تو جب آزمائش ہوگی سر تو اس نے پھر اس دنیا کا جو ڈیزائن ہے وہ ایسا بنانا ہے یا بنایا ہے جس میں سفر آئے گی. سفر کیسے آئے گی, کسی کا باپ جائے گا تو کسی کی بیٹی جائے گی. جیسے میری بیٹی فاطمہ سر اس دنیا سے گئی اور بہرحال اس آزمائش سے گزر گیا اللہ تعالیٰ نے. باقی جو بھی گھر صاحب نے سیلف ایکچولائزیشن کے بعد ہی یہ فیکٹ ہے. تو اس پر میں بات کروں گا, پہلے بات کریں کہ وہ ظاہر ہے کسی کا
पेरेंट्स कहेंगे किसी के भाई बहन और ये सारी चीजें, तो हम ज़ाहिर आजमाइश आ रहे हैं। तो बड़ा वक्त आ जाए तुम्हें मैं वापस बुला दूँ और तुम पीछे छोटे छोटे बच्चे छोड़ दो, यही बात है एक्चुअली, छोटे छोटे बच्चे छोड़ दो तो तुम कैसे महसूस करोगे कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए? यानी इतनी जबरदस्त ये जो एम्पैथी की मिसाल है, एम्पैथी एक होता है सिंपैथी कि मैं हमदर्दी करता हूँ, आपसे बड़ी हमदर्दी करता हूँ। एम्पैथी है कि आप एक लम्हे के लिए चले ये सोचें अगले की पोजीशन में अपने आप को रखें। मैं आज इस दुनिया से बुला के हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए सोसाइटी से और अपने दोस्त से क्या एक्सपेक्ट करूंगा? अगर मैं मुझे खतरा रहा हो कि उनके पीछे से माली आकर से उधर ये एजुकेशन या बाकी चीजें कोई ग्रुप मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो सिर्फ आज हम समझते हैं कि हमारी सिर्फ उसकी हो रही है जिसकी सफरिंग है, नहीं। वो कहते हैं जिसको मैंने दिया है, जिसको 10 करोड़ दिए हैं उसे 10 करोड़ का साथ देने, और जिसको 10 रुपए दिए हैं उसे 10 रुपए का साथ देने। बात याद है जो सीईओ ने जाफर साहब, हाँ जाफर साहब, तो उन्होंने कहा था कि हमारा मूवी कल्चर ये है कि हम अपनी नेकी का फटाफट फल होता देखना पसंद करते हैं। ऐसी बात तो है मतलब मस्जिद हमारे सामने बन रही है, हर चीज हो रहा है, किसी को पैसे दिए, राशन आ गया, हर चीज वो बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है, मेरे फॉर रिजल्ट है। तो एजुकेशन अलीमी सर्कल ऐसा है जिसमें बड़े लॉन्ग टर्म जाना पड़ता है आपको। हो सकता है कि जिस बच्चे की कॉलेज आप ले रहे हैं वो तो जाके एमफिल तक जाके वो स्काबर होगा, लेकिन जब वो स्काबर होगा तो पूरी नस्ल बदल देगा अल्लाह के खुशी से। और आप कितनी मिसालें होंगी, आप सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में हैं, आपसे ज़्यादा कौन बता सकता है? फातिमा आज़ाद वेलफेयर प्रोग्राम हम खुद एक प्लेटफॉर्म है, एनजीओ नहीं है, ना ही हम अपनी डोनेशन लेते हैं, हमें मतलब आपके तहत हमारे माशाल्लाह सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम खुद हर वक्त इस नीड में रहते हैं, लोग आते रहते हैं हमारे पास, लेकिन हम खुद भी एक चैरिटेबल प्रोग्राम होते हुए ये चाह रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम में जरूर अपने से शिमा लगाएं। क्यों? इसको हमें भी जरूरत है, हमारे पास हम लोग हमारे लिए कितने तरह की जायज चाह रहे हैं, बट दिस इज सो सेटिस्फाइंग ऑनेस्टली। और पूरा ये हाफिज साहब को, उमैर साहब को एक ब्रेक देते हैं किस किस स्टेज पे बच्चा आ रहा है, कौन सी क्लास में हो रहा है, पूरा मतलब वो उनकी जो भी उनकी प्रोग्रेस हो रही है। तो मेरी अभी मैं थोड़ा सा वो पिछले फंक्शन की निस्बत थोड़ा सी कम कहते, लेकिन ऑनेस्टली मैं थोड़ा अपसेट हुआ एंड आई फाइंड कि मेरी जो हालात में मॉर्निंग ऑफ स्ट्रेट आई उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो बट इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग जब आप सबने बताया कि एक्चुअली द नंबर ऑफ डोनर्स हैज इंक्रीज्ड माशाल्लाह। मतलब वैसे बोला बैच के जो हमारे डोनर्स हैं वो माशाल्लाह इनके बढ़े। तो आखिरी बात कहते हैं जो गिलानी साहब ने बात की थी वो गाड़ी के वाले से, तो सर होता ये था कि एक्चुअली अभी मुझे पिछले महीने भाई ने कहा कि भाई अगर गाड़ी आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, 10 साल हो गए, आवाज़ें भी काफ़ी आती है इसमें। मैंने कहा यार मैं जब इसके एसी लगाता हूँ पहले पॉइंट में ना ठंड लगनी शुरू होती है, जब मैं सर्दी होती है हीटर लगाता हूँ पहले पॉइंट में गर्म हो, जहाँ जाता हूँ गर्म हो, कोई टेंशन नहीं, घर चौकी देख आया कहने का मकसद ये है कि अब मैं नई गाड़ी उस समय पहले करोड़ों रुपए से गाड़ी आती है अच्छी, तो मुझे उसके लिए इतनी एक फ्रस्ट्रेशन के साथ एक ऑल द वे अगेन कोशिश करनी पड़ेगी, जबकि वो मैंने स्टैंडर्ड से लोगों को दिखाना है। जो ये बात है मुझे मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, पूरी हो रही है वाई शुड आई, मैं तो अपने को स्क्वीज करूँ उसके लिए, ठीक है। और अल्लाह इसे उससे दुगनी डिग्री दे रहा है जितनी आप शो मार के लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह जिसे कहते हैं रिचनेस इज स्टेट ऑफ माइंड, आपकी स्टेट ऑफ माइंड अगर आपको वही कर दे तो इतने प्रेशर से ऑफ रोड कर देता है कि आप खुद ही अपने आप को बाकी चीजें समझना शुरू हो जाती है। तो जब हमने प्लेन में घर में माशाल्लाह ने पैसे लगे वो आखिर में कहा कि यार नॉट थोड़ा छोटा रहेंगे एंड नाम का प्लॉट खाली है उन्हें तो लेकिन उसके लिए फिर मैंने फिर दोबारा करूँगा मैं बनाना ये इस तरह फिलॉसफिकल सी बात है। तो ये बात करें ये एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये डॉक्टरी नहीं सिखाई, डॉक्टरी उठा के और पूर्व करियर में आ रही है, ठीक है। और मैनेजमेंट थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, दिल चाहता है कि आपकी बातें सुनते रहें। और जिस तरह कि आपने बात की यहाँ पे जो हमला लोग आए हुए हैं एक से एक कड़ी जुड़ती है, चेन बनती है और जो बारिश का पैदा करता है वही बारिश के सामने मदद देता है। तो इंशाल्लाह ये दोस्त यहाँ से जो निकलेंगे तो इस पैगाम को साथ लेके जाएंगे और तलीम का काम जो है वो आगे फैलेगा, नेशन की गवर्नमेंट जो है वो प्ले करें और आप सबसे दरख्वास्त है कि इसको गौर से जो है वो देखें ताकि आप तक नजारी का मैसेज है।
बुनियादी हक से महरूम न रहे। लेकिन पाकिस्तान के लाखों बच्चे आज भी स्कूल के रास्तों से बेखबर, इल्म की रहगुजर से दूर हैं। पाकिस्तान में तालीम की सूरत तसल्ली बख्श नहीं है। 25 मिलियन चिल्ड्रन यूनिसेफ रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों से बाहर है। हमारा ख्याल है कि पेंडेमिक के बाद बच्चों की मजीद बड़ी तादाद आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में शामिल हो जाएगी। पाकिस्तान में आज भी ऐसे गांव हैं जहां दूर दूर तक कोई स्कूल मौजूद नहीं। ऐसी ही एक बस्ती सबू जनूबी है जहां 50 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं था। पहला जराए तसकूर कान आई तक कोई बात ना पढ़ा करना है। कई सारे उनका स्कूल था ना तालीम असली अनपढ़ सारे पूरा था अनपढ़। इन पसमानदा और दूर दराज इलाकों में तालीम का फरोग एक इंतहाई मुश्किल काम है। यहाँ के लोग बच्चों पर पैसा खर्च करने, खास तौर पर लड़कियों की तालीम को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, जबकि माल मवेशी उनकी नस्ल में उम्र भर का कुल असासा है। गजाली एजुकेशन फाउंडेशन की बदौलत आज सबू जनूबी में भी स्कूल बन चुका है और बहुत से मजीद स्कूल कायम किए जा रहे हैं। किताबें भी देना, पेंसिल भी देना। नजदीक स्कूलों ना छोटे कम उम्र बच्चे भी जो है ना शौक ना स्कूल है ना। इस सूरत हाल में हम भी समझते हैं कि हमने काफ़ी काम किया है। 22 स्कूलों से जिस सफ़र का आगाज़ किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 800 से ज़ायद स्कूलों तक फैल चुका है। लाखों बच्चे प्राइमरी और मिडिल पास कर चुके हैं, जबकि 1.25 लाख बच्चे आज भी गजाली के स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। 1997 से शुरू हुए रोशनी के सफर में गजाली एजुकेशन फाउंडेशन मुफलिसी और गुर्बत के झुलसे हाथों में इल्म के नूर से नई लकीरें बनाता है, यतीम और मुस्तहक बच्चों की किफालत करता है और इन्हें ख्वाब देखना भी सिखाता है। गजाली के पास ये जो चंद गुलदस्ते के फूल आपने देखे, इस तरह के 10-20 नहीं, सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों फूल हैं कि जो गजाली, और इनमें से हर बच्चे की एक दास्तान, इनमें से हर बच्चे की कहानी। अगर हम उस गहराई में जाए तो फिर तो बहुत सारे हो सकता है गजाली का उनका तारुफ ना हो, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ मुझे बहुत सारे चेहरे ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो अपने दिलो जान से गजाली के साथ, तो वो लोग के जो इश्क के इस काफिले के राही हैं, उनको ये जान लेना बड़ा जरूरी है और ये अपडेट्स आपको फायदा देगी कि वो ये जान सके कि कौन सी वादी में है, कौन सी मंजिल में है इश्क के बलाखेज का काफिला सख्त जान। तो कुछ चीजें मैं आपको समझिए कि आपके साथ शेयर करूंगा और उसी में से कुछ बातें मैं उन लोगों के लिए भी शेयर करूंगा कि जो आज पहले इवेंट में हमारे पास आए हैं या गजाली के किसी पहले आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी और आज पहली मरतबा यहाँ मौजूद है। देखिए, बुनियादी तौर पर जो काम हम कर रहे हैं वो काम ऐसा है कि शायद हमारे करने का था नहीं, लेकिन हमें करना पड़ा। यानी तालीम, सेहत, दिफा एक फलाही रियासत में बुनियादी तौर पर हुकूमतों की जिम्मेदारी, और ये हमारी जो इस्लामी रिवायत है उसमें मेरे मुताले की हद तक ये तीनों चीजें ऐसी रही है कि जो मुस्लिम रिवायत में बड़ी हद तक, या यूं समझिए कि 100% ना सही तो 80% ये रज़ाकाराना बुनियादों पर होती है, यानी ये कमर्शियल नहीं होती। और तालीम तो शायद आखिरी दर्जा होगा कि जिसके कमर्शियल होने का कोई इम्कान हमारी मुस्लिम दुनिया में नहीं पाया जाता। और ऐसे ऐसे साहबज़ा थे कि जो अपने खर्च पर, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मसलक के बहुत सारे मुसलमान हम पैरवी भी करते हैं, उनके बारे में आता है कि खुद कपड़े की तिजारत करते थे और अब ना सिर्फ ये कि अपने तलबा को तालीम देते थे और बेहतरीन तालीम देते थे, बल्कि उनकी रिहाइश और उनके खुर्दोनोश का बंदोबस्त भी करते थे। स्कूल में तालीम हासिल कर रही और खुशी से नहीं कर रही, मजबूरी से कर रही। यानी हर शख्स ये चाहने के बावजूद उसे अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो गवर्नमेंट स्कूल में ना तो क्वालिटी एजुकेशन है, ना एक्सेस टू एजुकेशन है, यानी पहुंच भी नहीं है, रसाई भी नहीं। तो इस तरह की सूरत हाल में हमने अपने हिस्से का काम करने की कोशिश की। मैं नहीं कहता कि हम इस चैलेंज को मुकम्मल तौर पर बीट कर पाए। अगर ये 2.5 करोड़ बच्चे हैं तो गजाली में पास आउट बच्चे कम बेश 1.5 लाख वो बच्चे हों और 1,40,000 इस वक्त बच्चे मौजूद हैं कि जो हमारे पास तालीम हासिल करें। लेकिन हमने अपने हिस्से का कुछ काम करने की कोशिश की, क्योंकि जो नाउमीदी है उससे तो कुछ हासिल नहीं होता, और मोमिन को तो ये हुक्म है कि वो किसी भी तरह के हालात में नाउमीद नहीं हो। हम फलसफे में कहते हैं कि बाज़ अशिया की पहचान उनकी जिद से हो, यानी कि उसका मुतज़ाद होता है। तो शम्मा
इकबाल ने भी जो खूबसूरत मिसरा है, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया में, तो हमने भी ये कोशिश की है कि शम्मा के उस वजूद की तरह इस इदारे को बनाया जाए कि वो वजूद अपने पूरे पोटेंशियल से काम करते हुए अपनी जो जिद है उसे खत्म करने की कोशिश करे। इराम राज जमाली, जहां सरदारों की और वडेरों की हुकूमतें भी रही, वजीर आजम भी रहे वहां से, लेकिन आप अंदाजा करें कि बिल्कुल आप जरा से शहर से बाहर निकले तो ऐसे इलाके हैं जहां ना सड़क, ना पीने का पानी दस्तयाब है, मस्जिदें भी नहीं, बहुत कम, दूर दूर मस्जिद। घरों में जाते हैं तो हमने बच्चों को चरपाइयों से जंजीरों के साथ बंधे हुए देखा, तो ऐसे 10-20 नहीं, ऐसे एक बच्चे पर काम करने की जो कॉस्ट है, तो इस वक्त हमारे 1500 बच्चे ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ स्कूल्स में हमारे पास ऐसे बच्चे तालीम हासिल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है वो गजाली एजुकेशन ट्रस्ट का। और कितनी पंजाब में तारीख स्कूल्स है, तो सिंध में उन स्कूल्स को जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो बाहर के डोनर्स हैं उनके साथ मिलकर बनाए हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स हैं। ये बड़े बड़े स्कूल्स हैं, तो 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ जगह इनके पास, यानी स्कूल की कंस्ट्रक्शन भी फिर उन्होंने ऐसे की है कि जो उन्होंने ईंट गारे से नहीं बनाई, बल्कि वो एक स्टील स्ट्रक्चर है, उसमें ये थर्मो कंक्रीट हम जिसे कहते हैं उसको फिलिंग की है, सोलर सिस्टम्स लगाए हैं, और ये स्कूल्स उन्होंने 40 स्कूल्स पूरे सिंध में बनाए। हमारे ये भाई मैदान में आते हैं, ख्वाब बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में 100% शरह ख्वानगी, ये बिल्कुल दीवानगी वाली बात लगती है, और दुनिया में काम भी दीवाने ही क्या करते हैं। जिन्होंने भेजना है, जिन्होंने इसको करना था, मेरे भाई कह रहे थे सिंध में छोटू गए, सिंध में कहा, पूरे पाकिस्तान में कभी छोटू गए कभी मोटू गए। यही रुकावट है इस पाकिस्तान के रास्ते में। लेकिन सलाम उन लोगों को कि जो मुश्किल टास्क को डट के लेके खड़े हैं, और मुझे यकीन है कि इस टास्क को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। ये 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर नहीं रहेंगे, और ये 45 लाख ऐसे खुशकिस्मत हम जरूर पाकिस्तान में पैदा कर देंगे जिसका एक हाथ एक यतीम के सर पे होगा इंशाल्लाह। हम बरेलतों में खुद गरज से लोग हैं। इमरान भाई आवाज आ रही है? बड़ी अच्छी बात है, हम यहाँ सुन रहे हैं कि फैसलाबाद में, मैं भी जानता हूँ उस स्कूल को जो बोर्ड में पोजीशन लेता है, उस चक में के साथ मेरा भी तल्लुक और आता है। सियालकोट शिवपुरी की बात भी, लाहौर की भी, तो वायरल गुजरात ये ठीक है कि कानकोट का बच्चा भी हमारा बच्चा है, लेकिन हमें जो मोहब्बत गुजरावाला के उस तकलीफ में रहने वाले बच्चे के साथ है, वो शायद उस मोहब्बत तक वहां तक ना पहुंच सके। तो मेरा ख्याल है कि आज ये टाइम है कि गजाली की हमारी टीम जो है वो ये टास्क गुजरावाला को दी। और मैं यकीन से कहता हूं कि ये शहर हर टास्क को पूरा करने की सलाहियत है, और ये हिस्ट्री में भी बारहा ये बात साबित हो चुकी है कि एक मुश्किल टास्क अहले गुजरावाला ने जब भी लिया, क्योंकि बड़े बड़े टास्क तो बड़े बड़े होते, मैंने तो सुना है बचपन में इकहत्तर के बाद तो जंग भी हमने कोई नहीं लड़ी, वो पता नहीं क्यों लड़ी थी, कुछ चीजें हमारी खराब हो गई। मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्त चाह रहे हैं ऐसी बात करूँ, मैंने सिर्फ जंग की बात की है, मैंने लड़ने वालों के बारे में कुछ नहीं कहा। चले वो फिर किसी और मौके के लिए सही। खराब टैंक इस शहर में आए थे, और इस शहर के उन हुनरमंदों ने जिनके पास तालीम तो ज्यादा नहीं थी, वो टैंक ठीक करके वापस किए थे। ये हुनरमंदों का शहर है, जफाकशों का शहर है, मेहनती लोगों का शहर है, खुददार लोगों का शहर है। तो मैं गजाली को इस शहर में वेलकम करता हूँ, और हस्बे रवायत फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुजरावाला में एक बड़े प्रोजेक्ट का आगाज करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे इस हाउस में मौजूद दोस्त और गुजरावाला के हमारे साथी इंशाल्लाह गजाली के कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए उस टास्क को, उस प्रोजेक्ट को एक कामयाब प्रोजेक्ट जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। और चूंकि आज के प्रोग्राम का मौजूद फंड रेजिंग है, फॉर्म आपके पास है, इसमें आप वादे की बरकत तो पहले बताई जा चुकी है, इरादा करें, नियत करें। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप खुद से डोनेट कर रहे हैं,
कोई दोस्त यहाँ मौजूद है जो माशाल्लाह बड़े लोगों से तलकात करते हैं। ये फॉर्म उनके पास है, एड्रेसेस है, हाफिज उमैर साहब का नंबर भी है, किसी के पास नहीं है तो भी उनको दे देंगे। इसके बाद भी आप रमजान के महीने में अपने दोस्त साहब को तालीम के इस काज के लिए याद रखिएगा, तालीम नस्लों को बदलती है। यार डॉक्टर साहब तो कह रहे थे, अब यकीन करें मेरे सामने जिंदगी में लंबी लाइनों और सक्सेस स्टोरीज थी। मैं कैसे बच्चे को जानता हूं कि जिसकी माँ जिंदगी में इतना तंग आ गई, यतीम बच्चा छोटा सा, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उससे पहले बड़े अच्छे हालात थे। बदकिस्मती ये थी कि उसके मियाँ सेल्फ मेड आदमी थे, अकेले थे और बड़े अच्छा रेंट पे घर लिया हुआ था, वहां रहते थे। अचानक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई और उसके फिर एक साल बाद वो खातून जो है, मेरे डॉक्टर अपने कानों से उसकी ये लफ्ज सुने हुए हैं, मेरे पास जिंदगी में एक ही चॉइस है कि मैं बच्चों को उनको नहर में जाके कूद जाऊं। और उसके बाद उसके बच्चे ने मेहनत का रास्ता, पढ़ने का रास्ता इख्तियार किया और 2 साल पहले मैंने स्टेटस लिखा एक काज के लिए कि डोनेट करें। वो बच्चा मेरे पास आया, अब वो बच्चा नहीं है, बच्चा मेरे पास आया, एक एनवेलप उसने मुझे दिया, उसने कहा सर आपके स्टेटस के अंदर, और जब मैंने खोला तो 1 लाख रुपया था। मैंने कहा बेटा ये ज्यादा है। उसने कहा कि आपको शायद अंदाजा नहीं है, मेरी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। तालीम के जरिए वो बच्चा जिसकी माँ उसको नहर में फेंकने के लिए, खुद मरने के लिए तैयार थी, तालीम एक ऐसा रास्ता था जिससे उसकी जिंदगी बन गई। और मैं कहता हूं एक पूरी किताब लिखी जा सकती है जिन लोगों की जिंदगी में कि जिनकी नामुमकिन से तालीम के रास्ते कामयाबी का सफर। हमारे शहर से ताल्लुक रखने वाले एक ब्यूरोक्रेट, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, उनकी वालदा ये कहा करती थी मेरी जिंदगी में कितना मुश्किल दौर देखा था कि लोगों के घरों में भी काम किया था। औलाद को कमाना नहीं छोड़ा, तालीम का रास्ता इख्तियार किया और कामयाबी का रास्ता। और हो सकता है कि आप जिस एक बच्चे के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट का बायस करें, कल को इस सोसाइटी के लिए कितना कारगर शहर है। ये खैर को इसी जज्बे से हमें बोला है और इंशाल्लाह ये तनावत रख बनेगी। तो सेगमेंट मेरा उसका आगाज करते हैं। दोस्तों को आपके पास है कुछ, उमैर भाई कलेक्ट कर रहे हैं कुछ वादा फॉर्म्स भी, जो कि पिछले 3 साल 4 साल से हम यहाँ पे गुजरावाला में काम कर रहे हैं। और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ और बात करता हूँ कि हमें यतीम बच्चों की हिफाजत चाहिए, हमें स्पेशल बच्चों की हिफाजत चाहिए, तो एक ख्वाब जो मज़हर साहब हमें हर दफा दिखाते हैं, उसको उस ख्वाब को आप तक पहुँचाने के लिए हमने कुछ काम शुरू किया है। और वो ख्वाब जो है वो बच्चे और बच्चियों का हाई स्कूल जो है वो इंशाल्लाह गुजरावाला में हम तामीर करने के लिए जा रहे हैं। और उसका प्रपोजल जो है वो हमने तैयार कर लिया। ये खाका है उस स्कूल का जो कि गुजरावाला में तामीर होगा। आपने बात की थी कि गुजरावाला के लोग जो है वो हर मुश्किल रात को पूरा करते हैं। बड़े खास काम के लिए आपको बुलाया। प्रोग्राम तो आजादी का है, लेकिन आप चूंकि मौजूद हैं तो हमें अलखिदमत भी पूरी नजर आती है ना। ये हमारे दोस्त हैं आसिफ साहब, यहाँ अभी कैमरे के साथ मौजूद थे। उनकी ये बेटी जो है, इसने पिछले 4-5 माह में एक बॉक्स जो है अलखिदमत का, उसमें अपनी डेली जो है मनी वो डाली हुई है और वो इसको डोनेट करना चाह रही है। परसों अलखिदमत के प्रोग्राम में यहाँ नहीं सकी तो मैंने कहा जुनेद इकबाल साहब मौजूद है, बेटी मौजूद है, तो ये भी डोनेट करते हैं। ये इसका पहला कदम इस बच्ची के प्यार से शुरू हो गया। आप लोगों के फार्म भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने जो हमारे रज़ाकार हैं वो जल्दी से 50,000 माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप कबूल करे। जी काशिफ सजीद साहब हैं फ्यूचर विलियम स्कूल से माशाल्लाह, वो जल्दी से स्टेज पे ये फॉर्म भेजें ताकि इस सेगमेंट को वाइंड अप किया जाए। मरियम लाइन मुझे थे, मैं इतनी डोनेशन है माशाल्लाह। अच्छा 1000 रुपीस। अल्लाह ताला ये लोग इधर मदद कर रहे हैं शहरों में
اللہ تعالیٰ صرف میری رضا کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فتنے کو خود سنبھالے. ہم اپنی دعاؤں میں اہل فلسطین کو نہیں بھول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ جو آزمائش آئی ہے اللہ تعالیٰ کو ثابت قدم رکھ, اللہ تعالیٰ کو اپنے زور میں توڑ دے. اللہ فرما برکت اللہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.